Hello student. So I'm over here with your next chapter in computer, and the name of the chapter is Internet Services and Mobile Technology. Hopefully you have gone through the first chapter, and just right now it's time for the second chapter. So first of all, to start with the chapter, we will learn more about email. What does the word email stand for? Email stand for electronic mail. Okay. So I would like to give you more information about email. So the first email was sent by Tomlinson in the year 1971. That was the first email sent. So this email is of very high purpose nowadays. It can be widely used to send messages from one computer to the another computer. Or you can rather say that this method can be used to send mails from one electronic device or a digital device to another digital device. Because nowadays we have got the capability to receive email in mobile phone or in other tablet or other electronic devices too. That is why I have made use of the word that is digital device. So email have got an email server. That email server actually help the user to send mail from one computer to the another. Okay. For example, the most popular email service provider is Gmail that you know about it. Okay. So if I will just talk about various service provider of email, the first one would be Gmail, second one is Yahoo, third one is Rediffmail, then after Hotmail is also there. Okay, then after Live is also there. So various email providers are there, but Gmail is one of the famous out of it. Just simply want to tell you more about how a email ID look like. For example, just look over here, ratna2106 at the rate of gmail.com. It's my Gmail ID. Okay, so what does the word RATNA2106 stand for? It's my username. And what's my domain name? It's gmail.com. Because Gmail is the service provider and .com is a company who is providing their services to me. Okay, so hopefully you understood the concept right now. But in this particular section, I would like to tell you more about the practical aspect of sending email and little bit more secret issue that you don't really know about regarding sending an email. Okay, so let's get started with the practical part of it. Okay, fine. So this is my browser. I would like to open Gmail, www.gmail.com. Okay. As soon as Gmail will get open in front of me, it will ask for the email ID or phone number. Okay, just think about that. I don't have any Gmail ID, so I can create a one. So if I will click on to create account, they would ask for what particular purpose you are creating that. It's for myself or it's for a business purpose. So for right now, I'll be clicking on to myself option. As soon as I'll be clicking over there, they'll be asking for the first name, they'll be asking for the last name, as well as they will ask for some kind of a username also. Okay. So what I just simply want to know is that you can add any first name, you can add any last name, as well as you can add any username. So what does the word username means? Username means a particular name of your Gmail account. It should be unique. For example, as you know that RATNA2106 is my Gmail account username. So when I'll be creating RATNA2106 again in Gmail, they won't allow me to do that because RATNA2106 already exists in Gmail. So just right now, if you want to create anything, any kind of Gmail account, it should be unique. It should not be same as before. Okay, तुम कुछ भी बना सकते हो पर कुछ नया होना चाहिए. But RATNA2106 can be created in not in Gmail but in Yahoo Mail or in Rediff Mail also. अगर वहाँ पे किसी ने बनाया नहीं है तो. So the important thing is that we can create our own email ID in our own way, and then after we can confirm our password as well as login ID, and then after clicking on to next, हमारा Gmail ID create हो जाएगा. So this is the process of creating Gmail ID. Okay, just right now I will tell you how to log into a Gmail, and then after how to send mail, how to attach some kind of document to the mail and all that. So I am writing an email ID.
it's a dummy email for me. I usually use this email for practical purposes only. Oh, it's wrong. Okay, so as soon as my email will get open, my email is already protected. So you can see ki here they have written the recovery phone number as well as the recovery email ID. So I don't want that. So I can either update it or confirm it. So I'm just confirming it out. So after clicking on confirming it, my Gmail account will be getting uploaded. Okay. So as soon as my Gmail account will be getting uploaded, you can find it out that there are so many mail inside of it. Okay, so there are so many mail inside of it. So these are all about the mail that I've received actually. So there is the primary section, there is a social section, there is a promotion section. So there are different section in which I can receive the mail. So just right now you can find it out ki here they are just showing ki the Gmail is also having a provision to do video call with the help of the Google Meet. So I know about it. So I don't want to join right now. So just see that ki here the options are inbox, start, snooze, send, draft, more. Uh, you will find various options over here. Okay, so if someone will send you some kind of mail, it will be in the primary section of it. If it is not a spam, so what I just mean to say is that the most of the mail actually reach over here, or you will be finding that particular mail that didn't reach may be present inside the spam also. So spam is also some kind of advertisement and all that. And if you will delete some kind of mail, it will go inside the bin. So inside the bin, you will find some kind of mail that you have deleted or you don't require that kind of mail. So this is the way. So if you want to write any email to anyone, you can click on to compose option over there. That is the plus sign. So click on to compose option. As soon as you will be clicking over there, they will just tell you to just write the email ID. For example, think about that. Okay, I want to write an email to myself only. This is my email ID ratna2106. So I'll be writing that thing out. And the subject is, just think about that. It's hello. I've written a mail like hello friend, how are you? So this is my mail. So that I have written. Okay, fine. So as soon as I'll be writing the mail, I have got the option to send the mail. But think about that. I don't want to send the mail. I want to just send an attachment to it. Attachment means some kind of document I want to send with this mail. So click on to this option, that is attach file. As soon as you will be clicking onto this, there will be a dialog box will get open and they will ask you to just browse some kind of document that you want to attach. Just think about that. In my document section, file is there, that I just simply want to this. Just I just okay click onto it and I just click onto OK option. So as soon as I'll be clicking onto OK option, you will find it out at the bottom of it, it's getting added. Again, if I just simply want to add some kind of file, just think about it. Some kind of another file, I just simply want to open it. Okay, so I'll be again clicking onto this and I'll be choosing any file. For example, this one I'll be clicking onto OK. So just right now it will be getting added. So in this particular it will be getting added, but the important thing is that if a particular file is having a size more than 25 MB, because Gmail is only having a provision to send up to 25 MB. तो 25 MB से ज़्यादा सेंड नहीं हो सकता. तो उससे भी ज़्यादा अगर सेंड करना है तो you can send either a link or you can actually upload it with the help of Google Drive. तो जैसे कि मान लो कि मुझे एक फाइल सेंड करना है and the size of the file is little bit more. For example, here some kind of movie section of mine is there. Okay, so I just simply want to add this particular movie, that is Maze Runner, and the size of the movie is 1.1 GB, something like that. So after I will click on to open, they will ask me if the file size is very large and you cannot send it, and if you want to send it, you have to send it through Google Drive. So if I will click on to OK, got it. So Google Drive will upload that file for me, and then after the file will just getting sent to my Gmail through this particular option, that is with the help of the Google Drive. So just right now I'll be clicking on to send option. So I will be clicking on to send. So you will find it out कि message send is written over here. So if you want to undo the message send, गलती से send हो गया, तो you can undo it, and it's given for a second of time. तो ये time चला गया. Okay.
तो तुम अगर सेंड ऑप्शन में जाके अभी फिलहाल देखने वाले हो तो यू विल फाइंड इट आउट कि मैंने जस्ट अभी एक हेलो मैसेज भेजा था। तो ये हेलो मैसेज यहाँ पे आ चुका है। दिस इज द वन दैट आई हैव सेंड, एक्चुअली दिस इज द हेलो मैसेज दैट आई हैव सेंड। तो आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड टू डॉक्यूमेंट ओवर, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंच भी गए होंगे। एंड देन आफ्टर मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम ईमेल से बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ 3 स्मॉल डॉट प्रेजेंट ओवर देयर, मोर ऑप्शन में अगर क्लिक करोगे तो यू कैन रिप्लाई टू ए मेल, यू कैन फॉरवर्ड ए मेल, मतलब यही मेल किसी दूसरे को भेजना है, एज वेल एज यू कैन मेक ए प्रिंट आउट ऑफ इट। तुम इसे स्पैम भी बोल सकते हो। स्पैम का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर तुम्हारे पास ईमेल आता है कोई भी अननोन इंसान से और तुम चाहते हो कि तुम उस इंसान के प्रति रिपोर्ट कर दो कि हाँ वो तुम गलत ईमेल मुझे क्यों भेज रहे हो, गूगल इस चीज को थोड़ा सा रिव्यू करे तो तुम रिपोर्ट स्पैम कर सकते हो। तुम उस मैसेज को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, अगर वो दूसरे लैंग्वेज में है तो ट्रांसलेट करने की भी सुविधा तुम्हारी जीमेल ने दे रखी है। In this particular way you can do lot of stuff with the email originally, but the important thing is that कि मैंने तुम्हें just only बताया कि किस तरीके से तुम्हारा ये purposefully काम करता है, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा गूगल ड्राइव के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो if you will click onto this dot over here you will find it out कि यहाँ पे जितने भी सारे options है जो कि गूगल हमें जो apps provide कराता है सभी options मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। Yes, so Google is providing me Google search option, Google Map, you know about it. Google YouTube is also there. Play Store is also there. Gmail, Google Meet is just right now free up to September. Contacts भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ जो मेरे मोबाइल फोन में मैंने स्टोर किया है. Google Drive is also there. Calendar, translate, language translate कर सकते हो. Google Photos, Google Duo, Chrome एंड बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये कुछ सॉफ्टवेयर भी है. गूगल क्लासरूम भी यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है. तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गूगल ड्राइव को चेक करूँ तो गूगल ड्राइव को भी मैं चेक कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन टू इट, एज बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मैं किसी भी ऐप को ओपन कर सकता हूँ, या यूट्यूब को क्लिक करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट, या मैं अगर कोई वीडियो कन्वर्सेशन में जुड़ना चाहता हूँ तो आई कैन ऑल्सो गो फॉर गूगल मीट. ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर वे आई कैन ऑल्सो एक्सेस वेरियस ऐप विद द हेल्प ऑफ माई गूगल that is Gmail account. Okay, and Gmail account is providing me so many benefits actually. So Google account को तुम यूज करोगे तो you will be getting lot of benefit. अलग विद तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जस्ट ऑप्शन आया था कि मीटिंग स्टार्ट करना है गूगल मीट में, तो यू कैन एक्चुअली क्लिक ओवर हियर, यहाँ से हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द वे. तो अभी अगर तुम्हें कोई भी मेल भेजेगा तो दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द इनबॉक्स ऑफ योर्स. अगर तुम कोई मेल को सेंड करते हो तो तुम उसे चेक कर सकते हो सेंड मेल के अंदर. अगर तुम्हें कोई स्पैम सेंड करता है, दैट इज कोई तुम्हें कोई कंपनी से कोई मैसेज सेंड करता है, दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द स्पैम ऑप्शन ऑफ इट. क्योंकि कोई मैसेज डिलीट करते हो तो तुम्हारा बिन ऑप्शन के अंदर तुम्हें मिल जाएगा. तुम शेड्यूल मैसेजेस भी भेज सकते हो. शेड्यूल मैसेजेस का मतलब होता है कि कल सुबह 10 बजे मैसेज पहुंच जाना चाहिए सभी को, अभी नहीं पहुंचना चाहिए, तो शेड्यूल मैसेज भी सेंड कर सकते हो. तुम हैंगआउट में चैट्स भी यहाँ पे देख सकते हो. कुछ फाइल को तुम इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो. ठीक है, स्नूज का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर मेल को तुम स्नूज करके रखोगे तो क्या होगा कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर मेल तुमको याद दिलाता रहेगा कि हाँ ये मेल आया था, मतलब कि तुम इसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, जस्ट लाइक ए रिमाइंडर. ओके, स्टार्ट भी कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैसेज को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट स्टार्ट. एज सुन एज मैं स्टार्ट कर दूंगा, देखो स्टार्ट हो गया और ये मैसेज मेरे स्टार्ट के अंदर दिखा देगा. तो स्टार्ट के अंदर देखो ये मैसेज आ चुका है. ठीक है, तो पहले नहीं था स्टार्ट के अंदर, पर एज सुन एज मैंने उसे स्टार्ट किया, स्टार्ट के अंदर आ गया. तो स्टार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज को तो मार्क करके भी रख सकते हो. सो दिस इज द वे. तो गूगल हमें ये सब बेनिफिट्स तो प्रोवाइड कराता ही है. तो दिस आर द बेसिक बेनिफिट दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द गूगल. और इसके अलावा तो मैंने तुम्हें वेरियस एप्स के बारे में बता ही दिया जो गूगल प्रोवाइड कराता है. तो दिस इज द वे. तो अभी मैं लॉग आउट कर जाता हूँ. होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या चीज बताया. अभी प्लीज थ्योरी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं. ओके फाइन, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ. तो जस्ट राइट नाउ आई एम बैक टू माय प्रेजेंटेशन अगेन. तो मैं प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सा खत्म कर देता हूँ. तो व्हाट आई जस्ट मीन टू से इज दैट कि मैंने तुम्हें बताया कि ईमेल किस तरीके से सेंड करते हैं. सो दिस इज द वे आई कैन सेंड इट ईमेल. मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रैक्टिकली दिखा दिया है. एंड जस्ट राइट नाउ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल. तो स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल में सबसे पहले होता है फ्रॉम. फ्रॉम तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज एज सुन एज तुम अपने ईमेल में लॉग इन करते हो तुम ही सेंडर होगे जो कि लॉग इन किया है, तो सेंडर का नाम अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है. रिसीवर को पता चलता है कि किसने भेजा है. उस तरीके से मैं तब भेज रहा हूँ तो मुझे टू का एड्रेस तो पक्का फिलअप करना पड़ेगा, बिकॉज मैं किसको भेज रहा हूँ आई नीड टू नो. तो टू का मतलब होता है मैं किसको मेल भेज रहा हूँ. एंड फ्रॉम तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज सुन एज लॉग इन मैं फ्रॉम ही क्या लाऊंगा. सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मान लो कि मैं 10 लोगों को मेल भेजना चाहता हूँ और 10 लोगों को मुझे
10 लोगों को मेल भेजूँगा, तो मैं एक्चुअली एट अ मोमेंट ऑफ टाइम 2 से 1 ही को मेल भेज सकता हूँ। 2 के बाद मैं क्या कर सकता हूँ ना, अगर सीसी में क्लिक करूँगा, तो उसी चीज़ का डुप्लीकेट कॉपी किसी दूसरे इंसान को भी भेज सकता हूँ। तो उनका एड्रेस मैं टाइप करूँगा, फिर से सीसी में क्लिक करूँगा, दूसरे इंसान का एड्रेस टाइप करूँगा, लाइक दिस आई कैन कंटिन्यू। बस सीसी वालों इंसान जो होते हैं, जिनको मेल मिलता है, उनको पता होता है कि किन-किन लोगों को मेल गया है। मतलब मैं अगर 10 लोगों को भेजूँगा और मुझे अगर एक मेल मिला है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अलावा 9 कितने लोगों को मेल मिला है। तो सीसी को तो ये पता चल ही जाएगा। पर बीसी से क्या होता है, तुम्हारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है कि मैं जो मेल भेजने वाला हूँ, मुझे मेल मिला है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये मेल और बाकी कितने लोगों को मिला है। एज़ इफ ये मेल किसी 10 लोगों को और भी मिला है, पर मुझे नहीं पता कि उनका एड्रेस क्या है। बिकॉज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एड्रेस तब लिखा जाता है, तो गूगल क्या करता है कि ये दिखाता नहीं है कि और कितने लोगों को ये मेल मिला है। मतलब और कितने लोगों को ये सेम मेल मिल चुका है, ये मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगा विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर बीसीसी ऑप्शन। तो तुम तब मेल लिखोगे, तो तुम 2 ऑप्शन में तो एड्रेस लिखोगे, तुम किसको भेज रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजना है, जैसे कि मैं तब कोई प्रेजेंटेशन भेजता हूँ तो एक से ज्यादा बच्चों को भेजता हूँ, 20-25 बच्चों को भेजूंगा, तो मैं सीसी ऑप्शन में सभी का नाम लिख के दूंगा। पर अगर मैं चाहूंगा कि यही पर्टिकुलर मेल सभी तक पहुंचे पर किसी को पता ना चले एक दूसरे का ईमेल आईडी, तो मैं बीसीसी करके भेजूंगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि और मैंने मेल किन किन लोगों को भेजा है। तो दैट इज द वे एक्चुअली। तो ये तुम्हारा दूसरा पार्ट हो गया। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि व्हाट डज द वर्ड स्पैम एंड जंक मेल स्टैंड फॉर। स्पैम का फुल फॉर्म होता है सेंड पीपल एलोटा मेल। मतलब ये तुम्हारा जो वर्ड है स्पैम का, इसका फुल फॉर्म तुम्हारा होता है सेंड पीपल एलोटा मेल। इसका मतलब होता है कुछ इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेज देना ज्यादातर लोगों को। जैसे कि होता क्या है कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी भी तरीके से हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, सर्वे फॉर्म फिलअप करते हैं, उन्हें हमारा ईमेल आईडी मिल जाता है। या हम इंटरनेट में बहुत सारा सर्वे करते हैं, जहां पर भी वो हमसे हमारा जीमेल आईडी या कुछ भी ईमेल आईडी मांगते हैं। एज सुन एज हम वो वाला डाल देते हैं ना, तो ये जो मेल है, वो मेल क्या करते हैं, कुछ लोग उसे कुछ कॉस्ट में बेच देते हैं। मतलब कि 100 मेल का 500 रुपीज, लाइक दिस ओनली। तो उसको कुछ कंपनीज को सेल कर देते हैं, और कुछ कंपनी क्या करते हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए या कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट सेंड करने के लिए वो मैसेज हमें भेजते हैं। तो वो जो मैसेज होता है वो स्पैम मेल होता है, वो इनबॉक्स में नहीं घुसता, स्पैम वाले फोल्डर के अंदर घुसता है और बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। और ये मैसेज कभी कभी सही भी नहीं होता, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। दैट इज वाई इस मैसेज का फुल फॉर्म होता है कि सेंड पीपल एलोटा मैसेज। उस तरीके से जंक मेल क्या होता है, जंक मेल कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होता है। जैसे कि तुम फ्लिपकार्ट या यूट्यूब करते हो, तो उसमें से रिलेटेड कुछ भी सब्सक्राइब वाला ऑप्शन या उससे रिलेटेड कुछ मेल, या तुम फ्लिपकार्ट में कुछ चीजों को देखे हो, अभी फ्लिपकार्ट वाला तुमको मैसेज भेज रहा है कि आपका कार्ट अभी भी खाली है, प्लीज भर लो, लाइक दिस ओनली। कुछ भी एडवर्टाइजिंग मेल कुछ भी हो सकता है, जो कि जंक मेल के अंदर घुस सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट जंक मेल ऑप्शन। समझ में आया। तो तुम ये सब ऑप्शन जीमेल से तो देख ही सकते हो, मैंने तुम्हें जस्ट अभी जो दिखाया। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं अबाउट द सर्च इंजन। तो जिस तरीके से मैंने अभी तुम्हें गूगल खोल के दिखाया था, तो गूगल इज अ फेमस सर्च इंजन। तो गूगल के अलावा तुम्हारा बिंग है, याहू है, आर्क्स है, ये सब फेमस सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन इज एक्चुअली ए प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं वेब पेजेस का। मतलब मैं तो कोई भी वेब पेज को सर्च करूंगा, तो वो सर्च इंजन वो वेब पेज मेरे लिए खोज के ला देगा और वो डिस्प्ले करा देगा इन माय डेस्कटॉप। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि बहुत, मतलब कि कुछ भी इंफॉर्मेशन जो मुझे सर्च करना है, वो इजीली मेरे सामने सर्च होके आ सकता है, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऑलवेज मैं कोई भी चीज जब सर्च करूंगा तो मैं गूगल का सहारा लूंगा, बिकॉज आई थिंक सो कि गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन। उसके अलावा तुम अगर याहू यूज करते हो, बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इट इज ऑल्सो वेरी गुड सर्च इंजन एक्चुअली। याहू भी अच्छा है, बट हैविंग कंस्टिट्यूट ऑफ सो मेनी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मुझे गूगल और बिंग में नहीं मिलता। दैट इज वाई आई कैन मेक यूज ऑफ गूगल और बिंग। तो तुमको पता होगा सर्च इंजन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलो आज तक हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी टॉपिक कवर करेंगे। होपफुली ये वीडियो तुम लोग यहाँ तक देख लेना, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश